Good morning, dear students. Welcome back in the computer class. Now, as you all know that we have discussed already the concept of recursion. So, on the basis of that, we are going to start the programs. Now, this is our first program based on recursion. So, let us start with this. Question is, a special number is a number in which the sum of the factorial of each digit is equal to the number. Repeating again, in which the sum of the factorial of each digit is equal to the number. For example, if I say 145, so 145 is a special number because the factorial of 145 you can split into 1 plus 4 plus 5, right? And I need to calculate the factorial of every digit, means 1 factorial, 4 factorial, 5 factorial. If the sum of this first term, second term and third term, if the sum is equivalent to the number itself, then I can say it is a special number, right? I hope the question is clear to everyone. Now look at here. In 11th class, the programs will come in this way. Already the name of the class will be given to you. Then the names of the members will also given to you. The functions which you need to make in the class also you will get it, right? That means everything will be given in the form of description. Up to now whatever you have studied in your 10th class, आपने क्या पढ़ा है कि just only simple program is given and accordingly you make it. But now everything will be specified and accordingly you have to make the programs. राइट तो आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, डिज़ाइन अ क्लास स्पेशल टू चेक इफ द गिवन नंबर इज अ स्पेशल नंबर और नॉट. सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द क्लास आर गिवन बिलो. नाउ क्लास का नेम क्या है? स्पेशल. दैट मीन्स क्लास नेम इज ऑलरेडी स्पेसिफाइड. इफ यू विल चेंज द क्लास नेम योर मार्क्स विल गेट डिडक्टेड. ठीक है, सो रिमेंबर इट, डू नॉट चेंज द डिस्क्रिप्शन गिवन इन द क्वेश्चन. Next one is your data member. What are data members? Data members means the variables. Data members means variables. So here in the class I am going to make one variable, that is n. N is used to store the number of integer type, right? Then the member functions are here. First is your special. Now what is this? This is the same name as that of the class name. It means it is a constructor or not? It is a constructor. And which type of constructor it is? Default. क्यों? Because default constructor do not take any arguments, so we know it already. So this is your default constructor. Now next is void read. Void read, what is the use of this? To accept a number. यानी कि इसके अंदर हमें इनपुट कराना है नंबर को. कौन से नंबर को इनपुट कराना है? दिस वन, n, right? Next is int factorial int x. That means we are having the next function name as factorial. Return type क्या है इस function का? int. और क्या कर रहा है? It is going to accept a parameter of which type? Integer type. यानी कि integer type का argument ले रहा है और integer type का argument ही return करा रहा है. Now use of this is returns the factorial of a number using recursion. Using recursion, and you know it very well how to find out the factorial of a number using recursion. हमने किया है ये live class में already. Same concept you will apply here. Next function is boolean is special. Now what is the use of it? Boolean is special क्या check कर रहा है? Boolean का मतलब इसका जो return type है वो किस type का है? Boolean. मतलब either it will return true or it will return false. Checks for the special number by invoking the function factorial. इन्वोकिंग का मतलब क्या होता है? कॉल. दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो? कौन सा फंक्शन? फैक्टोरियल फंक्शन को इस फंक्शन के अंदर कॉल करना है. एंड रिटर्न्स ट्रू इफ इट इज़ स्पेशल, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स. यानी कि फैक्टोरियल फंक्शन को स्पेशल फंक्शन के अंदर कॉल कराना है, इज स्पेशल के अंदर. एंड इफ इट इज सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी, मतलब 1 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, अगर वो पूरा सम अगर आपका इक्विवेलेंट हो जाता है किसके इक्वल? ओरिजिनल नंबर के इक्वल, तो यू विल रिटर्न व्हाट? ट्रू, अदरवाइज यू विल रिटर्न फॉल्स. लास्ट फंक्शन इज वॉइड डिस्प्ले.
टू शो द रिजल्ट विद एन अप्रोप्रिएट मैसेज, यानी कि हमें मैसेज के साथ प्रिंट कराना है कि दिस इज़ अ स्पेशल नंबर और इट इज़ अ नॉट स्पेशल नंबर. I hope the question is clear to everyone. So in this way the programs will come in your exam now. ठीक है. Secondly, specify the class. देखो लास्ट में क्या given है, specify the class special, giving details of the constructor, void read, int factorial, boolean special, void display. यानी कि क्लास बनानी है जिसके अंदर ये सारे फंक्शंस होने चाहिए. And define the main function also to create an object. एक मेन फंक्शन बनाना है जिसका काम क्या होगा, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होगा. एंड कॉल द मेंबर फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द इनेबल द टास्क. ठीक है, फंक्शंस बनाने हैं, मेन के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एंड अकॉर्डिंगली वी विल कॉल द मेंबर फंक्शंस. क्लियर है. ने मूविंग ऑन टू द सॉल्यूशन नाउ. Yes, so solution start करोगे. The first thing is it depends either you are using scanner class or using IO class, that means package. ठीक है, either you can use that IO package or you can use a util package, it depends on you. So I am going to use here java.io. अगर हम java.io use करेंगे and if I will provide the input, so I have to use here what, input stream reader and buffer reader. And if I will make the class using scanner, अगर आप स्कैनर की फंक्शनैलिटी को यूज़ करना चाहते हो तो पैकेज क्या होगा, जावा डॉट यूटिल. और फिर रीड कराने के लिए हम क्या लिखते हैं, स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर. गॉट इट. सो बाय एनी ऑफ द मेथड यू कैन यूज़ इट, बट दिस स्कैनर मोस्टली वी विल अप्लाई अप टू 10th क्लास ओनली. अप टू 10th क्लास ओनली वी अप्लाई दिस मेथड. उसके बाद हम एक्चुअली क्या करते हैं, इनपुट ऑफ बफर रीडर का जो हम यूज़ करते हैं वो 11th और 12th में करते हैं. बट ऐसा नहीं है कि इफ़ यू विल मेक द प्रोग्राम यूजिंग योर स्कैनर सो इट विल बी रॉन्ग. ठीक है, बट 11th और 12th में आपको मेनली जो फोकस करना है वो किस पे करना है, इनपुट रीडर एंड बफर रीडर पे. क्लियर है. देन तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू यूज़ इनपुट एंड बफर रीडर, सो हमने यहाँ पे यूज़ किया java.io. उसके बाद इस लाइन को लिखने की कोई नीड नहीं है, देर इज़ नो नीड टू राइट दिस वन. देन आई विल स्टार्ट द क्लास. क्लास नेम वॉज ऑलरेडी गिवन एज अ स्पेशल, आई एम यूजिंग अ स्पेशल. तो हमने लिखा पब्लिक क्लास स्पेशल, ओपनिंग ब्रैकेट. उसके बाद में हम क्या लिखते हैं, इंट एन. वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं ना, व्हाट आर द वेरिएबल्स, इंट एन ओनली. ओनली वन वेरिएबल वॉज देयर, सो आई डिक्लेयर्ड इट. द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डिफाइन द कंस्ट्रक्टर. कौन सा कंस्ट्रक्टर था हमारे पास, सीक्वेंस में करते चले जाइए जो भी दिया हुआ है. default constructor. So default constructor is used to provide the default values. So as we know ki the default value of n, that means of integer type, will be 0. So I am going to specify here n is equal to 0. Right. Next we need to input the values into read. Look at here, read the functionality. void read का क्या यूज़ है, to accept the number, यानी कि इनपुट कराना है एक वैल्यू नंबर के अंदर. तो जब इनपुट कराना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, देखो n इज़ इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट. और ये जो इन्होंने लाइन लिखी है ना, दिस लाइन, डू नॉट गेट कन्फ्यूज विद दिस. आप ऐसे नहीं करना चाहते, लीव इट. आप इसकी जगह पे इन प्लेस ऑफ दिस, ये इन्होंने एक एक लाइन में कंबाइन करके लिखा है, आप पूरा लिख सकते हो, इनपुट स्ट्रीम रीडर. ठीक है, रीड इज़ इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, और यहाँ पे पास करना सिस्टम डॉट इन, जैसे 10th में कराया था. एंड उसके बाद लिखोगे क्या, बफर रीडर इन इज़ इक्वल टू न्यू बफर रीडर, और ब्रैकेट में पास करोगे रीड. क्लियर हो गया, सेम एज इट इज़. ठीक है, तो इनपुट स्ट्रीम रीडर, बफर रीडर. उसके बाद आप क्या लिखोगे, एंटर एनी नंबर, SOPLN, एंटर अ नंबर एंड n इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सेंट. और BR की जगह पे क्या लिखोगे फिर, इन डॉट रीड लाइन. नेक्स्ट स्टेप, हाउ टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. यू नो इट वेल ना, हाउ टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल. यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है इफ x इज इक्वल टू 1. मैंने आपको बताया था ना कि 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है. तो यू कैन मेक मोर देन 1 केस ऑल्सो. ठीक है, और आप ये भी कर सकते थे, इफ़ x इज़ इक्वल 1 तो रिटर्न 1.
एल्स इफ x इज इक्वल 0 रिटर्न 0, या फिर सिंपली एक केस भी बना सकते हो कि इफ x इज इक्वल 1 रिटर्न 1, एल्स यानी कि इसको कट करके एल्स return x into factorial of x minus 1, because a parameter is x here, so we have to apply the condition with x only, not with n, right? ये हो जाएगा factorial. Then next one next one is boolean is a special. स्पेशल के अंदर मुझे क्या चेक करना है, मुझे इसके अंदर चेक करना है कि अगर मेरा नंबर स्पेशल होगा तो ट्रू रिटर्न कराना है, अदरवाइज फॉल्स. जैसे कि यहाँ देखो बूलियन टाइप का है ना, तो अगर आपका मतलब मैच करता है यानी कि 1 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, इफ़ सम इज़ इक्वल टू द नंबर. तो यहाँ देखो मैंने कंडीशन लगाई है लास्ट में, बिफोर जस्ट लेट मी एक्सप्लेनिंग ऑल दिस थिंग्स, द लॉजिक ऑफ दिस पार्ट, लेट मी कम हेयर. यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इफ़ n इज़ इक्वल सम. अब ये जो सम कैलकुलेट करोगे, सपोज़ मैंने इसके लिए यूज़ कर रखा है सम वेरिएबल. सो इफ़ सम और n जो ओरिजिनल नंबर है अगर दोनों इक्विवेलेंट हैं, यानी कि अगर मेरा 145 मेरे इसके इक्विवेलेंट है तो रिटर्न कराओगे ट्रू, अदरवाइज रिटर्न कराओगे फॉल्स. तो ये तो चेक कर रहा है स्पेशल नंबर की कंडीशन. बट उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सम को फाइंड आउट भी तो करना पड़ेगा ना. हमें ये भी तो निकालना पड़ेगा कि 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल को निकालोगे भी तो, और फैक्टोरियल कैसे निकालोगे, रिकर्शन को यूज़ करके निकालना है. ठीक है, अब यहाँ देखिए कैसे हम कर रहे हैं. See, now I have created a duplicate copy of this n. That means my num will store 145, right? And my sum will be what? My sum will be 0. Initially sum कितना है, क्योंकि calculate नहीं किया, so it will be 0. Now while number is greater than 0, या हम लिख सकते हैं while number is not equal to 0. कोई सी भी एक condition लिख लेना है यहाँ पे, और while number is not equal to 0. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक एक डिजिट फैच करनी है फ्रॉम द नंबर. तो यानी कि मुझे पहले 5 फैच करना है, 4 फैच करना है, फिर 1 को फैच करना है, और सब इंडिविजुअल डिजिट का आई विल फाइंड आउट द फैक्टोरियल. सो डिजिट निकालने के लिए क्या लिखते हैं, मॉड्यूलस. तो हमने t इज़ इक्वल टू हमने लगा दिया नंबर मॉड्यूलस 10. नंबर मॉड्यूलस 10 कितना हो गया, नम में क्या वैल्यू है 145. 145 मॉड्यूलस 10 कितना हो गया 5. अब इस 5 का निकालना है फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल के लिए हमने फंक्शन क्या बनाया था, रिमेंबर फैक्टोरियल बनाया था ना. तो यहाँ देखो हम क्या लिख रहे हैं, फैक्टोरियल ऑफ t. किसका फैक्टोरियल निकालना है, t का, यानी कि 5 का फैक्टोरियल निकालना है ना. तो ये जो t है दैट विल गेट कॉपी इनटू योर x. और मैंने फंक्शन कॉल करने के लिए मुझे कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. क्यों, क्योंकि नॉन स्टैटिक फंक्शन के अंदर आई कैन डायरेक्टली एक्सेस नॉन स्टैटिक फंक्शन. सो देयर इज़ नो नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट टू कॉल द फंक्शन फैक्टोरियल. मैंने डायरेक्टली लिख दिया फैक्टोरियल ऑफ टी करा, तो फैक्टोरियल ऑफ टी का मतलब है फैक्टोरियल ऑफ 5 पास हो गया, 5 का फैक्टोरियल निकल जाएगा. जो भी 5 का फैक्टोरियल आएगा वो किसके अंदर आ गया, f के अंदर. यानी कि जो भी 5 का फैक्टोरियल है वो आ गया f के अंदर, वैल्यू आएगी एक्चुअली इसके अंदर 5 फैक्टोरियल की. ठीक है, उसके बाद में मुझे 5 फैक्टोरियल किसके अंदर ऐड करना है, सम के अंदर, क्योंकि मुझे इसको पास करना है यहाँ पर, है ना. तो क्या करोगे आप लोग, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस एफ, यानी कि 0 प्लस 5 फैक्टोरियल कितना हो गया. अब यहाँ पर देखो ये कितना हो गया, 0 प्लस 5 फैक्टोरियल कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल, जो भी आंसर आएगा इसका. ठीक है ना. नेक्स्ट आई थिंक 128 इज, तो ये 120 स्टोर करेगा सम में, इट विल स्टोर 120. ठीक है, उसके बाद जब 5 फैक्टोरियल निकाल चुके हो तो अब आपको क्या करना है, नंबर को कितना बनाना है, 145 से 14, है ना. तो हमने क्या लिखा है, देखो नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10. तो नंबर कितना हो गया 145 से, देखो 145 डिवाइड बाई 10 कितना हो गया 14.5 ना, इट मीन्स 14. नाउ इट विल मूव बैक अगेन हेयर. अब फिर से चेक करो, नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि 14 इज़ ग्रेटर देन 0, ऑफ कोर्स येस इट इज़. तो हमें फिर से क्या करना है, अब नाउ नेक्स्ट स्टेप, नंबर मॉड्यूलस 10 किस में चला जाएगा, टी में. टी की क्या वैल्यू है अभी तक 5. अब न्यू अपडेट होके क्या हो जाएगी, नंबर मॉड्यूलस 10, यानी कि 14 मॉड्यूलस 10. 14 को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है 4. तो टी के अंदर कितना पहुंच जाएगा 4, राइट. नाउ इंट एफ इज़ इक्वल टू, अब मुझे क्या करना था, फैक्टोरियल निकालना है, मतलब एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करनी है, फिर उसका फैक्टोरियल भी निकालना है, उसको सब में ऐड करना है. तो सीक्वेंशियली आप करते जाइए. फैक्टोरियल अब निकालना है टी का, टी के अंदर कितना स्टोर है
4, तो यानी कि ये क्या करेगा 4 का फैक्टोरियल कॉल कर देगा और आपको आंसर रिटर्न कर देगा 4 का फैक्टोरियल। तो जो भी 4 का फैक्टोरियल आएगा वो किसके अंदर आ जाएगा, f के अंदर। अब इस f को कहाँ पास करना है, कहाँ पे ऐड करना है, सम के अंदर। तो क्या लिखोगे, सम इक्वल टू सम प्लस f। तो 5 फैक्टोरियल तो ऑलरेडी उसमें था ही, इसके अंदर क्या ऐड हो गया इसी के आगे, 4 का फैक्टोरियल, इज़न्ट इट। नम को फिर डिवाइड कर दो 10 से, कितना हो गया 1। इसी तरीके से फिर वो 1 का फैक्टोरियल भी निकाल लेगा और सम के अंदर ऐड कर देगा। तो यहाँ पर इसी के आगे प्लस होके हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल, ये 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम पे जब फिर से रिपीट करेगा तो आपका नंबर हो जाएगा 0, इसकी वजह से, क्योंकि जब 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 0.1 यानी कि 0। तो नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, 0 0 से बड़ा है नो। आप जैसे ही कंडीशन इससे बाहर आओगे लूप से, यहाँ पर आ जाओगे कंडीशन फॉल्स होने पर। अब आपने चेक किया n इज़ इक्वल सम, तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू सेम है। हमने डुप्लीकेट कॉपी क्यों क्रिएट की थी, इसीलिए तो क्रिएट की थी क्योंकि हमें पता है कि नंबर की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0 बन जाएगी, है ना। तो डुप्लीकेट कॉपी में चेंजेस होंगे, ओरिजिनल विल गेट सेम। सो फॉर द कंपैरिजन आई एम राइटिंग हियर n इज़ इक्वल सम, इट मीन्स n की वैल्यू थी 145, सम के अंदर कितना आ रहा है 145, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल को जब आप ऐड करोगे तो 145 ही आएगा, ठीक है। अगर ये दोनों इक्विवेलेंट हैं तो वो ट्रू रिटर्न करा देगा। तो इस केस में क्या रिटर्न होगा, इस स्पेशल से ट्रू ही रिटर्न होगा क्योंकि इक्विवेलेंट है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न फॉल्स। Clear? Then when this function will get over, I'm going to make the next function display. Look at here, what is the next function now? यहाँ पर देखो कौन सा फंक्शन है इस स्पेशल के बाद, डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर रिजल्ट को शो करना है, ठीक है। और अगर रिजल्ट शो करना है तो मुझे क्या मतलब मुझे क्या प्रिंट कराना है कि हमारा नंबर स्पेशल है या नहीं है। तो अगर और स्पेशल चेक कौन कर रहा है, ये वाला फंक्शन, तो यानी कि इसको कहाँ कॉल करोगे, इसके अंदर, यानी कि डिस्प्ले। आप ऐसे कह सकते हो कि जो डिस्प्ले फंक्शन है उसके अंदर इस स्पेशल को एक्सेस करना है, क्योंकि इस स्पेशल इज गोइंग टू चेक वेदर द नंबर इज स्पेशल और नॉट बाय रिटर्निंग द बूलियन टाइप ऑफ वैल्यू। सो लुक एट हियर नाउ, this one, void display. Now we need to call the function is special. अब इसके लिए भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, क्यों, क्योंकि void display क्या है, एक नॉन स्टैटिक फंक्शन है। is special भी कैसा है, नॉन स्टैटिक है, तो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो इस स्पेशल को कॉल किया एंड बिकॉज वी नो कि इस स्पेशल इज गोइंग टू रिटर्न बूलियन टाइप ऑफ वैल्यू, सो हेयर ऑन द लेफ्ट साइड आई एम टेकिंग बूलियन टाइप ऑफ variable to store the result. So either res will store true or it will store false. तो अगर ये ट्रू, अब देखो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ट्रू किस में लिखा है, कैपिटल में, फॉल्स किस में लिखा है, कैपिटल में, तो कंडीशन भी कैपिटल के लिए लगाओगे। अगर आप यहाँ से रिटर्न ऐसे कराते हो तो फिर यहाँ ऐसे ही लिखना, ओके, ट्रू और फॉल्स इन द सेम वे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, इफ़ रेस इज इक्वल ट्रू, ये फिर आप ऐसे लिखोगे, ओके। सो अगर रेस की वैल्यू ट्रू के इक्विवेलेंट हो जाती है तो दैट मीन्स एंटर्ड नंबर इज़ अ स्पेशल नंबर, एल्स एंटर्ड नंबर इज़ नॉट अ स्पेशल नंबर, फाइन। आफ्टर दैट मेन फंक्शन। अब आप देखिए कौन से फंक्शंस ऐसे हैं जो कॉल होने से रह गए हैं। भाई जो कॉल हो गए हैं उनको तो कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि यहाँ पर इस स्पेशल फंक्शन हम ऑलरेडी कॉल कर चुके हैं इसके अंदर, तो इस स्पेशल को मेन के अंदर कॉल करने की रिक्वायरमेंट है, नो, ठीक है। उसके बाद फैक्टोरियल फंक्शन को हम ऑलरेडी कॉल कर चुके थे, कहाँ पर, स्पेशल के अंदर, तो इसको कॉल करने की रिक्वायर्ड नहीं है। तो हमारे कौन से फंक्शंस बचे, वी आर लेफ्ट ओनली विथ 2 फंक्शंस, दैट इज़ योर रीड। तो पहले रीड कॉल करोगे क्योंकि रीड पहले इनपुट कराएंगे, देन दिस वन डिस्प्ले, राइट। यहाँ पे देख लीजिए आप, वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट फॉर दिस बाय राइटिंग दिस स्पेशल sp इज इक्वल टू न्यू स्पेशल sp डॉट रीड sp डॉट डिस्प्ले। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम sp रखा है, आप चाहे तो ऑब्जेक्ट बना सकते हो एंड यू कैन राइट हियर ob डॉट रीड ob डॉट डिस्प्ले, देन your main close and your class close. And here I am writing what throws IO exception. Reason is what, throws क्यों करा, throws हमेशा
हम तब लिखते हैं जब आप रीड से रिलेटेड कुछ भी काम कर रहे हैं, मतलब इफ़ यू आर गोइंग टू इनपुट एनी वैल्यू, इन दैट केस यू ऑलवेज हैव टू यूज़ थ्रोज। ठीक है, तो यहाँ पे जो रीड फंक्शन है, ये रीड क्या कर रहा था, इट इज़ गोइंग टू इनपुट द वैल्यू एक्चुअली फ्रॉम द कीबोर्ड, ये इनपुट ही तो करा रहा है ना। तो ये रीड फंक्शन के अंदर हमारी प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब एक्सेप्शन रेज हो सकती है रीड के थ्रू, इसलिए यहाँ पे हमने लगाया थ्रोज आई एक्सेप्शन। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, इसमें भी थ्रोज आई एक्सेप्शन लगाना पड़ेगा एंड इट इज़ कंपलसरी। यहाँ पे भी अब रीड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द वैल्यूज़, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, सो यहाँ पे भी एक्सेप्शन आ सकती है, तो इसलिए यहाँ पे भी लगाया थ्रोज आई एक्सेप्शन। तो जहाँ पे भी आप इनपुट कराते हो ना कीबोर्ड से रीड के अंदर करा रहे हैं, तो इसमें भी एक्सेप्शन आ सकती है। और रीड क्योंकि इनपुट की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो जहाँ पे रीड फंक्शन कॉल होगा वहाँ पर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, यू हैव टू इम्प्लीमेंट throws IO exception. Got it? So that is completed. Only one program we are going to discuss next program in the live class. That's it. Thank you.